Hello, everyone, and welcome to the next episode of Tech Talks podcast. I'm your host, Sanskriti Karam, and I am Krishisha. Today we have with us Vikram Malan, who is a seasoned virtual CTO with over 20 years of IT leadership experience. He has been helping startups overcome the biggest technological challenges. Welcome, sir. Hi everyone, this is Vikram Malyan, your virtual CTO. hello, sir. So, what does the term virtual CTO, as you just mentioned right now, right? So, what does it actually mean, and what is its role? So things are very virtual these days, so we have created this virtual CTO services. Basically, it is a just kind of on-demand rental kind of service. So whenever you need any technical solution or services, you don't need to hire the full-time CTO. You may have a startup may struggle with the budget constraint mainly. If you hire a virtual or a full-time CTO, it will cost you a lot. Like the whole budget will go to the CTO, CTC. So we have introduced the services called virtual CTO, kind of fractional CTO. So they will work with you, or I will work with you for some 2 3 hours in a week, so that to understand your problem and solve your problems. With that, more than 25 years of IT experience and more than 15 years of purely leadership experience. So that's an amazing amount of experience. Could you tell us more about your journey? How did you become a virtual CTO? So the virtual CTO started just around in last this March only, but the technical journey started in 2000 when I joined my tech graduation. So my tech journey started in 2000, and my family background, we have all the engineers background. My brother is also a software engineer, so that inspired me as well. So I also joined the computer science, and so tech was started. That time internet was not there. So after 2000, in 2004, I've started doing my job with the different companies in Delhi or NCRs. And in the early ages, that in the 2004 to 2007, I worked mainly in the web designing companies, like web to develop the websites for the different peoples, maybe from the US mainly, because the company has the client from the US. But that part is fascinating for me, that I'm solving the problem for the peoples, directly to the peoples, not to the big corporates, which basically जो बड़ी कंपनीज में होता है कि आप छोटे से पार्ट पे आप काम करते हो, मे बी फ्रैक्शन ओनली 1% और 2% काम आपके पास मिलता है. तो वो चीजें मेरे को एक्साइट करती थी कि मैं डायरेक्टली क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, उसकी प्रॉब्लम को सुन रहा हूँ और कोई सॉल्यूशन बिल्ड कर रहा हूँ. तो कुछ सॉल्यूशन ज्यादा नहीं था, कुछ वेबसाइट्स थी जो उनकी जो सर्विसेज को शोकेस कर रही थी या प्रोडक्ट को शोकेस कर रही थी. तो कुछ ज्यादा डायनेमिक वेबसाइट्स नहीं बनाई शुरू में. फिर डायनेमिक के लिए मुझे लगा उस टाइम पे सिर्फ फिर जावा, मुझे लगा कि जावा सीखनी चाहिए डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए. तो J2EE मैंने सीखा, कुछ सर्टिफिकेशंस भी किए, J2E में जॉब भी की. जावा डेवलपर, एज ए जावा डेवलपर पे मैंने जॉब स्टार्ट की. और वहां पे एक बहुत बड़ा इशू मेरे को फेस हुआ, या मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ये ना एक्साइट नहीं कर रहा है, इन द सेंस कि वो जो वहां पे हम जो सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे थे ना, वो बहुत ही लार्जर देन लाइफ था, कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हमें एक छोटा सा पार्ट मिला करने के लिए. तो वो रियल लाइफ में कनेक्ट नहीं कर रहा था लोगों को, कि मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ. कुछ आइडेंटिटी मिसमैच हुआ. तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि कैसे हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ जावा के साथ ही कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए, कि अगर किसी के लिए कोई वेबसाइट बनानी है, डायनेमिक वेबसाइट, डायनेमिक फीचर्स के साथ कुछ चीज उनको बना के देनी है, तो कैसे बना के दे सकते हैं.
फिर जावा में अगर वही चीज हम करते हैं तो हमें बहुत हैवी, उस टाइम पे काफी हैवी हमें वर्चुअल सर्वर्स लेने होते थे, और जावा उसमें वो काफी कॉस्टली आती थी। तो नॉर्मल वेबसाइट, जो डायनेमिक वेबसाइट है, जावा में बनानी ना काफी कॉस्टली पड़ रही थी। तो फिर मैंने पीएचपी सीखी और फिर मैं पीएचपी में मूव ऑन हो गया। वो मुझे काफी एक्साइटिंग लगा क्योंकि उसमें होस्टिंग काफी सॉल्यूशन, मतलब वो चीपर थी उस टाइम, तो बहुत ही सस्ते में मिल रही थी होस्टिंग। तो आई थिंक अंडर $1000 में हमें एक सी पैनल होस्टिंग मिल पा रही थी। तो उससे क्या हो रहा था, जो भी हम डायनेमिक वेबसाइट बना रहे थे वो हम इंस्टेंटली होस्ट कर पा रहे थे। और जो भी हमारे लोकल क्लाइंट्स थे, मतलब लोकल जिन भी लोगों से मैं मिल रहा था, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मेनली नॉट वेबसाइट, कुछ वेब एप्स मेरा हमेशा माइंड में रहता था कि कोई सॉल्यूशन वेब एप्स के थ्रू मिले उन्हें। वेबसाइट जो पोर्टल होते हैं उनके लिए मैंने उनके लिए बनाना शुरू किया। तो वो काफी हिट होने लगा। और सबसे पहले मेजर ब्रेक थ्रू आया मेरा, मैंने सबसे पहले जैसे ही मैंने जावा को छोड़ के मैं पीएचपी में शिफ्ट हुआ, लर्न किया, 6 महीने मेरे को लगे। तो मैंने लर्न करने के बाद क्या किया, सबसे पहले एक मैट्रिमोनी वेबसाइट बनाई जिससे कि मैं अपनी सारी फीचर्स और सब चीज उसमें बना पाऊँ। तो मैंने पूरी फीचर्स जो कि एक मैट्रिमोनी वेबसाइट में होनी, वो मैंने सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बनाई, जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ उनके लिए बनाई। वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, जस्ट एन फॉर माई सेल्फ, वो एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट था। लेकिन बाकियों के लिए एक सर्विस थी जो कि उन्हें एक कम्युनिटी सर्विस मिल गई। तो उसमें मैंने सारी फीचर्स जो कि एक मॉडर्न वेबसाइट में और कमर्शियल जो कि शादी.com या उस टाइप की वेबसाइट थी उनमें अवेलेबल थी, वो सारी मैंने उसमें दी। जो कि ये काफी, मतलब मेरी कम्युनिटी में उससे मेरे को उससे मल्टीपल बेनिफिट्स हुए। कम्युनिटी में एक लोग मेरे को जानने लगे क्योंकि मैंने कम्युनिटी के लिए बनाई है और अपनी कम्युनिटी के लिए बनाई है। और प्लस वो वेबसाइट जो मेरे क्लाइंट्स को भी पसंद आई, उनको समझ आया कि ये क्या काम कैपेबिलिटीज हैं, यूजर सेंट्रिक वेबसाइट या यूजर सेंट्रिक पोर्टल कैसे बना पाते हैं। वो सब मेरे को टेक्निकल नॉलेज आ गई उस टाइम पे, उस एक्सपेरिमेंट की वजह से। वो काइंड ऑफ डमी प्रोजेक्ट था मेरे लिए। उसको मैंने कमर्शियली भी लॉन्च किया और एज ए फ्री लॉन्च किया, मतलब उससे कोई रेवेन्यू अभी तक नहीं लिया मैंने। बट उससे मुझे चार पांच महीने मैट्रिमोनियल वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स भी मिले, और प्लस क्लाइंट के दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मेरे मिलने शुरू हो गए। तो वहां पे हमने धीरे धीरे इसी तरह से यूजर सेंट्रिक जो भी प्रोजेक्ट्स थे, फिर मैं हमने धीरे धीरे कुछ कस्टमर्स की प्रॉब्लम के लिए सीआरएम से, जैसे कॉल्स मैनेजमेंट है कि कस्टमर से जो लास्ट बात हुई है वो कैसे हम रिकॉर्ड करें, कस्टमर ने कहा कि हमें 10 दिन बाद हमें कॉल करना, उसे कुछ रिमाइंडर देना है, तो वो सब सॉल्यूशन हमने छोटे छोटे सॉल्यूशन बनाने शुरू किए। तो वो चीजें धीरे धीरे मूव ऑन होने लगी। एंड तो ये सिलसिला हमारा लगभग 2008 से लेके शुरू हुआ था और वो 2015 के आसपास तक पहुंचा। उसमें हमने काफी सारे सॉफ्टवेयर बनाए जो कि लोगों को, मतलब लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। वो मेरे लिए फैसिनेटिंग ज्यादा था कि जो उनकी एग्जैक्ट बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि नॉर्मल कॉल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ईआरपी भी हमने बनाया एक छोटा सा, जिसमें सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने रॉ मटेरियल्स भी मैनेज कर पा रहे थे, जिससे कि फिनिश गुड में जो प्रोडक्ट उनको बनाना है, मतलब कि उसमें 10 15 20 50 तरह की चीजें लिखनी है, लगनी है, उनकी क्वांटिटी वो स्पेसिफाई करते थे। एक मेरे को प्रोडक्ट बनाने के लिए किन किन रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो भी हमने बनाया। तो वो काफी लोगों को, मतलब उससे काफी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हुई लोगों की। एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का भी हमने बनाया, जो कंस्ट्रक्शन जो हमारे 4 फ्लोर्स वगैरह जो नेबरहुड में बनते हैं उनके लिए भी मटेरियल्स, काफी सारी रिक्रूटमेंट वो करते हैं, सर्विस मैनेजमेंट है, लेबर मैनेजमेंट वो इसमें होती थी, पेमेंट्स का, पे आउट्स वगैरह का सारा है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते थे, जो भी उनके सर्विस प्रोवाइडर है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होते थे, वो सब हमने उसमें रिकॉर्ड किया। तो उससे उससे भी उन लोगों को काफी, मतलब मेन था कि हमारा की जो छोटे वेंडर्स हैं उनके लिए क्या हो, तो ये सॉल्यूशन उन्होंने उनके लिए काफी हेल्पफुल रहे थे। फिर दौर आया मोबाइल ऐप का, 2018 ऑनवर्ड्स के आसपास जो है काफी मोबाइल्स आने लगे। कुछ एक तो हमने मोबाइल ऐप बनाने लगे,
क्योंकि इंटरनेट काफी बूम कर रहा था। जियो आ गया था आई थिंक 16-17 के आसपास। तो लोगों ने मोबाइल्स को ढंग से यूज करना शुरू किया, तो मोबाइल ऐप्स का बूम आया। लेकिन मोबाइल ऐप्स में हमने ज्यादा नहीं किया था शुरू में, तो ज्यादातर फोकस वेब पे ही रहा कि जो भी सोल्यूशन हम देंगे, क्योंकि इसमें एक एडवांटेज हमें मिल रहा था कि हमारा पीओसी जो होता है वो इंस्टेंटली हो जाता है। इंस्टेंटली मतलब कि मोबाइल ऐप का डेवलपमेंट हमारा 10 टाइम्स स्लो होता है एज कम्पेयर टू वेबसाइट। तो ये मेन मुझे चैलेंज लग रहा था। लेकिन लोगों को तो मोबाइल ऐप ही पसंद थी, तो वो शुरू में हमने मोबाइल ऐप कम किया। लेकिन फिर क्लाइंट ने हमें समझाया कि भाई हमें तो मोबाइल ऐप ही चाहिए, तो हमने वो एक दो मोबाइल ऐप्स बनाए। तो शुरू में तो ज्यादा नहीं बनाए, एक आई थिंक सोल्यूशन सैलून के लिए हमने बनाया था, स्किल प्रो समथिंग कुछ नाम था उसका। तो वो उनकी ट्रेनिंग्स के लिए यूज किया जाता था, जो यूट्यूब से वीडियो जो स्क्रैप करके लाता था, जो रिलेटेड टॉपिक्स वो देते थे। जिससे कि बेनिफिट ये था कि वहाँ वहाँ कुछ ऐसी ज्यादा बड़ी यूटिलिटी नहीं थी, बस एक स्क्रैपिंग टूल के थ्रू हमने उसको स्क्रैप किया, वीडियोस को लेके आए और उस ऐप में प्ले किए। जिससे क्या होगा कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम 10-20 डेली जो वीडियो उनको देते थे ट्रेनिंग के लिए, कि कोई हेयर से रिलेटेड कुछ सीख रहा है, फेशियल से रिलेटेड सीख रहा है, तो जो भी हमें कीवर्ड मिले उसके बेसिस पे हमने स्क्रैपिंग की और लिस्ट बना ली, और वो उनको डेली प्ले करने के लिए दे रहे हैं और उनकी हम ट्रैकिंग हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी को बोल दिया कि यूट्यूब पे जाके देखो, तो उसने देखा नहीं देखा क्या नहीं देखा वो हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ट्रैक कर पाए थे कि हमारा जो वर्कर है वो उन चीजों को सीख रहा है या नहीं, मतलब जो हमारे क्लाइंट का वर्कर है। तो वो मेजर एक ऐप हमने बनाई। तो वीडियो रिलेटेड ऐप में फिर मैं शुरू हो गया। तो सारी एप्स फिर उसके बाद जब ऐप बनी वो सारी वीडियो रिलेटेड ही रही। सो देन उसके बाद हमारा आ गया कोविड। कोविड के बाद सारी चीजें स्कैटर्ड हो गई। कोविड में आते ही फिर सारे जो भी क्लाइंट से जितने भी वर्क चल रहे थे सब ने पॉज कर दिया, क्योंकि ये सब कोई रेगुलर बिजनेस नहीं था। ज्यादातर जो हम वेबसाइट या ऐप बनवा रहे हैं वो साइड एक्टिविटी ज्यादातर कर रहे हैं, मतलब कि कुछ नया वेंचर वो प्लान करते हैं। स्टार्टअप नहीं है, क्लाइंट्स थे। स्टार्टअप भी कह सकते हैं, आज की डेट में स्टार्टअप का ज्यादा बूम हो गया है कि भाई पिछले 5 साल में, लेकिन उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था। तो जो भी क्लाइंट्स थे तो वो कुछ ना कुछ मतलब अपनी साइड इनकम से या कुछ बना के नया प्लान कर रहे थे। तो उन सभी लोगों ने ये सारे प्रोजेक्ट बंद बंद कर दिए और ये कहा कि भाई कुछ नहीं कह सकते कि हम कब चालू करेंगे। मे बी किसी को नहीं पता था कि क्या सर्टेनिटी है कोविड में। तो उन सब ने चीजें बंद कर दी, पॉज कर दी। तो फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई मैं एक जगह सीटीओ सर्विसेज के लिए मेरे को ऑफर आया। क्लाइंट ही था मेरा, उसने कहा कि मैं कंपनी चालू करना चाह रहा हूँ, तो मैं एज ए सीटीओ मेरे को ज्वाइन कर लो, मेरी टीम को हैंडल कर लेना। क्योंकि टीम भी मेरी स्कैटर्ड होने लग गई थी, क्योंकि 6 महीने हो गए थे कोविड के शुरू हुए, और उस टाइम पे कोई कोई भी क्लाइंट हमें, मतलब 2-3 महीने हमें स्ट्रगल करके हमने एम्प्लॉय को मैनेज भी किया, लेकिन कोई भी क्लाइंट अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं था। तो फिर हमने सब चीज डिसमेंटल करनी शुरू कर दी, डिसॉल्व कर दी टीम। सो फिर लकीली एक अपॉर्चुनिटी आ गई। फिर मैंने कहा कि अभी मैं भी फ्री हूँ, ठीक है ज्वाइन करते हैं। सो वो भी टिकटॉक रेप्लिका ऐप थी। उसमें मेजर इशू जो कि मैंने पुराना मेरा एक्सपीरियंस था, जो भी जितनी मैंने एप्स बनाई हैं वहां सबको यूज करने का मौका मिला। मतलब बहुत ही डिस्ट्रॉयड कंडीशन में वो ऐप मिली थी मेरे को। दैट इज टिकटॉक रेप्लिका, जो कि हम कह सकते हैं शॉर्ट वीडियो स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप थी। तो यहाँ पे ही रोल आता है एक सीटीओ का, जो कि उन्होंने सीटीओ ने, क्योंकि उन्होंने इधर उधर बनवा रखी थी पहले ही। तो उसमें क्या है कि कोई डेटाबेस की प्लानिंग नहीं है, यूजर जर्नी नहीं है, यूआई नहीं है, कोई बैकएंड प्लान नहीं किया गया है। तो वो सबसे बड़ा मतलब और वो 2 बार रीबिल्ड हो चुकी थी, तब वो उसकी ये हालत थी।
तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखने के बाद मुझे लगा, क्योंकि ज्यादातर मैंने प्रोजेक्ट किए थे अभी तक तो वो सारे सक्सेसफुल रहे थे, ये प्रोजेक्ट मेरे को मिला था वो किसी और ने किया था और जो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड कंडीशन में था, क्योंकि वहां पे स्केलेबिलिटी का इशू आ रहा था कि अगर इसको लॉन्च नहीं कर पा रहे थे वो, क्योंकि वो बार बार डिले हो रहे हैं, कुछ ना कुछ फीचर जो है वो चल नहीं रही है, ये ठीक कर रहे हैं तो वो खराब हो रही है, वो ठीक कर रहे हैं तो ये खराब हो रही है। तो इस तरह के इश्यूज आए थे उसमें। तो ये सारी चीजें ठीक करने के बाद, स्केलेबिलिटी ठीक करने के बाद, तब जाके वो 6 महीने में ऐप ठीक हुई और वो फिर हमने लॉन्च की। दैट्स व्हाट द जर्नी। और फिर उस ऐप को कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स तो सारे स्टार्टअप के साथ आ रही है। जो क्लाइंट्स जो नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं उनकी ऐप किस लिए फेल हो रही है, बिकॉज कि वो स्केलेबल ऐप नहीं है, या फिर जस्ट एक बन गई है किसी तरह दिखाने के लिए, दोस्तों को दिखाने वाली ऐप बन गई है लेकिन वो चल नहीं पा रही है। तो उनको ठीक करने के लिए मैंने कहा कि भाई हम एक सर्विस, अब मैंने एज ए सीटीओ या कोई टेक्निकल सपोर्ट के लिए मैंने अप्रोच करने लगा, लोगों से मिला, तो कहते हैं कि भाई हम आपको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा बजट इतना नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सॉल्यूशन को मोल्ड कर देते हैं, सर्विसेज के टाइम कम कर देते हैं जिससे कि वो लोग ज्यादा बेनिफिट उठा पाए। तो हमने उनके प्रोजेक्ट को असेसमेंट कर देने के बाद कुछ टाइम, मेनली अगर हम किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं या एक बिग शॉट 50 एम्प्लॉय की कंपनी है, तो वहां भी सीटीओ को एक प्रोजेक्ट के लिए इतना ही टाइम देना होता है। और वही अब हमने शुरू कर दिया कि वर्चुअली हम डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट को असेसमेंट करेंगे और जो भी उनमें इश्यूज हैं, टेक्निकल फ्लॉज हैं, जो हमारी मैनेजमेंट स्किल हैं, नॉलेज स्किल हैं, वो उनको देंगे जिससे वो अपने प्रोजेक्ट को ट्यून अप कर पाए। That's the major thing we are doing in virtual CTO. Like the virtual CTO, the whole concept is very different and new because we had heard, but it was a bit, a bit of dicey about what exactly it is. Even you told about what is fractional CTO, and it's really, I must say, it's amazing one, and it will come in startups now slowly and steadily. Yeah. So, I have a question for you. Like, Yeah. there must be some of the common challenges among all the experiences which you have gathered, right? So, can you talk a brief about those challenges and also advice on how to tackling those issues? स्टार्टअप्स में वैसे मेजर जो इश्यूज आते हैं वो टेक्निकली साउंड उनकी टीम नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टअप है, उनके पास बजट नहीं है तो ज्यादा सीनियर एम्प्लॉय वो ले नहीं सकते हैं। और टेक स्टार्टअप में ज्यादातर है कि जो 2-3 फ्रेंड्स हैं जो कि ग्रेजुएशन किया है या कुछ अंडर ग्रेजुएट भी हैं, वो लोग ज्यादातर प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं। अब उनके पास कोई सीनियर मेंटर नहीं होता जो उनको समझा पाए कि भाई ये तुम गलत प्लान कर रहे हो, इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करोगे तब जाके चीजें मैनेज हो पाएंगी। और वो ज्यादातर अब चीजों को डिवाइड नहीं करते हैं कि हमें किस किस पर्सन को क्या काम करना है। वो कोई भी आदमी कुछ भी काम करने लगा, क्योंकि सब टेक बैकग्राउंड से होते हैं, सब बीटेक वाले हैं या बीसीए वाले हैं, उन्हें लगता है हम सब कुछ कर लेंगे। वो सारे लोग मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं, सारे लोग कोडिंग भी कर रहे होते हैं, सब चीजें एक साथ होती है उनकी। तो उसी में हम एक डिवाइड जनरेट करते हैं। प्रोजेक्ट का सबसे पहले बैकलॉग बनाया जाता है, फीचर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, तब जाके वो चीजें स्मूथ होनी शुरू होती है। असली प्रॉब्लम ये होता है कि मेनली वो प्लान ठीक से नहीं कर पाते फेजेस वाइज, या फिर हम कहें कि माइलस्टोन कैसे होंगे, फीचर्स क्या रखनी है, किस चीज को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, किसको हमें आज ही करना चाहिए, वो प्लानिंग उनकी मिसिंग रह जाती है। बिकॉज वो टेक्निकली बनाना तो जानते हैं, पर क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसको हम अभी छोड़ सकते हैं, कैसे इतनी सारी चीजों को कंबाइन करेंगे, ये इश्यूज रहते हैं मेनली। इसी वजह से वो स्केलेबिलिटी में फेल हो जाते हैं। अगर गलती से उनका प्रोजेक्ट लॉन्च भी हो जाए, अगर वो लॉन्चिंग कंडीशन तक ले आए, चलो एनी हाउ इसको लॉन्च कर देते हैं, उनको 50-100 कस्टमर आज गए ना, उनकी मार्केटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, वो अच्छी एफर्ट कर रहे हैं आज के लड़के सब। तो उससे अगर वो कुछ लोगों को ले भी आते हैं ना, ऑनबोर्डिंग होनी शुरू होती है, तब वहां पे उन्हें चैलेंजेस फिर से फेस होते हैं
कि वो किसी भी यूजर, कौन यूजर क्या कर रहा है, आके आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, इन सब की ट्रैकिंग, क्योंकि उन्होंने प्लान तो फ्रंट एंड फीचर्स की होती है, तो वो बैक एंड फीचर्स की प्लानिंग मिस कर जाते हैं। तो फिर से वो रीबिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर से वो प्रोजेक्ट को पॉज करके, मार्केटिंग को पॉज करके फिर डेवलपमेंट में लग जाते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस जो हैं ज्यादातर स्टार्टअप फेस कर रहे हैं, तो इन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा सोल्यूशन था। सो अगर स्टार्टअप्स को है ना यूजुअली अपनी टीम मोटिवेटेड रखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? विजुअली मोटिवेशन की तो प्रॉब्लम खैर आ जाती है जनरली, क्योंकि मेनली क्या है कि जब प्रोजेक्ट डिले होता है ना, और जब डेडलाइन हमारी हमने रखा कि भाई हम 2 महीने बाद इसे लॉन्च करेंगे, फिर वो हम मिस हो गए, तो हर कोई फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो टीम तो सबसे पहले टीम मोटिवेटेड हो गई है, क्योंकि एक तो वो अंडरपेड है, सबसे कम सैलरी हम दे रहे हैं बिकॉज कि हम स्टार्टअप हैं, या फिर हम जस्ट एक कोलैबोरेशन करके ही चला रहे हैं, तो पहले से डिमोटिवेटेड। फिर जब वो डिले होता है तो सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन फैल जाता है कि यार अब सोच रहे थे कि कुछ चलेगा, एनर्जी आएगी, हो सकता है कुछ रिवेन्यू आ जाए, पर चीजें चले तो हर कोई को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ चीजें चल रही हैं। और वो चलती नहीं है, फेल हो जाती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं पे शुरू हो जाती है। तो उसी के लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले टीम को डिवाइड करते हैं कि जो भी काम वो कर रहे हैं उनको, जो, और स्मॉल विंस हम उनकी मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्मॉल विंस अचीव की जाए, जिससे उनको लगे कुछ, हाँ मैंने कुछ किया और वो एक सेटिस्फैक्टरी था, तो उसको एक विन मिले, तो हम उसको हम सेलिब्रेट भी कर पाए। तो इसको हम छोटे से, इसके लिए हम माइलस्टोन में कन्वर्ट करते हैं चीजों को। और पीओसी कंडीशन, अब जो प्रोजेक्ट में हम अलाइनमेंट में 2-3 चीजें करते हैं, एक पीओसी हो गया, एक एमवीपी हो गया, एक रिलीज या बीटा वर्जन जिसे हम कहते हैं, ये होता है। तो हम वो क्या करते हैं, सीधा रिलीज के लिए प्लान करते हैं, कोई पीओसी नहीं चलना, कोई एमवीपी नहीं आना, सीधा सीधा लॉन्च करेंगे और हमें क्लाइंट मिल जाएंगे, हमें काम, हमारा जो भी काम है ऑनबोर्डिंग शुरू हो जाएगी और हो जाएगा। तो ये जो फेज प्लानिंग है वो मिसिंग रह जाती है, यहाँ से सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं उनके लिए। तो जब हम पीओसी करेंगे तो पीओसी हमारा सक्सेस होगा, 10-20-50 लोगों को हम दिखा पाएंगे, देखो ऐसे चीजें चलेंगी, उनसे एक फीडबैक ले पाएंगे। मे बी उनके कुछ वो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, और 5-7 उनके फ्रेंड्स फैमिली जो भी हो सकते हैं, जिनको वो समझा पाए कि हम कर क्या रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वो हो जाता है। या किसी को क्या कहते हैं, इन्वेस्टर को भी अगर उन्हें पिच इन करना है, तो वो पीओसी उनका रनिंग मॉडल कुछ दिखाया जा सकता है। फिर आता है एमवीपी। अब पीओसी अगर हमने बना लिया है, कुछ रनिंग मोड बनाया है, तो वो एक उनके लिए विनिंग मोमेंट हो जाता है कि हाँ जो हमने बनाई है उसका एक स्मॉल प्रोटोटाइप हमने बना लिया है जो हम बनाना चाह रहे थे, तो वो दैट इज रनिंग कंडीशन, और वो हमारे हाथ में मोबाइल में है, वो हम 10 लोगों को दिखा सकते हैं। ये नहीं कि हम अपना लैपटॉप ही लेके जा रहे हैं तभी देखेगा वो, ऐसा नहीं है वो। तो वो पीओसी जब चल जाता है तो वहां एक उनको एक अचीवमेंट मिलती है। फिर हम उसको, अगर वो फंडिंग मिल रही है या सेल्फ फंडेड है, बूटस्ट्रैप है, जिस भी में, फिर हम उसको एमवीपी के लिए लेके जाते हैं। एमवीपी में ये हो गया कि थोड़ा सा रनिंग परफेक्ट मॉडल होता है, स्मूथनेस थोड़ी सी बढ़ाई जाती है, और उसका यूआई और बेटर किया जाता है, और फीचर्स थोड़ी सी और बढ़ाई जाती है, लेकिन उसमें कुछ मेजर फीचर अभी भी नहीं डालनी डालनी होती उस टाइम पे। ज्यादा फीचर्स हम डालेंगे तो फिर तो वो बीटा रिलीज ही हो गया। तो बीटा से हमें पहले रखना है एमवीपी, जो कि एक ठीक ठाक कमर्शियल लॉन्च हम कह सकते हैं। प्री बीटा एमवीपी वो हम देके उसको मार्केट में ला सकते हैं। तो इससे भी उन्हें लगता है कि हाँ अब चीजें हमारी सर्कुलेट होने लगी, जो जिससे कि जो डेडलाइन उनकी मिस हो रही थी ना बार बार, वो मिस होनी बंद हो जाती है। तो उन्हें लगता है कि हमने कुछ किया और वो चीजें चल रही हैं और राइट डायरेक्शन में चल रही हैं। एंड फिर हमारा बीटा रिलीज हो जाता है, जिससे कि हम फुल फ्लैज हमारा पेमेंट गेटवे आ जाता है। अगर कोई पेमेंट ले रहे हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, तो वो सब हमारी बीटा फेज में आ चुकी होती है। तो इस तरह से वो थोड़ा सा
जो डिसहार्टेड रहते हैं, बिकॉज कि अगर प्रोजेक्ट नहीं चल रहा तो डिसहार्टेड हर कोई है, अगर वो चल गया तो हर कोई मोटिवेट हो जाता है और उससे उनको काफी सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। Yeah. So इसमें also we have seen like the recent startups, you know, they are taking those Google startup मतलब जो funding रहती है, and also some of Microsoft, you know, startups and all. So they build projects on that. Like I have seen people doing that. तो फिर वो कितने हद तक like beneficial होता है, and is there any criteria कि if you have a startup which is having money or monetization तो ही वो लेना चाहिए, or else how? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो फंडिंग ले चुका है, जिसके पास मतलब बूटस्ट्रैप भी ज्यादातर क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, या जो भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो मेजर फ्लॉज जो फंडिंग मिल गई है उनको तो वहाँ मेंटरशिप दे रहे हैं। पर कुछ जो क्लाइंट्स हैं या कुछ जो भी नए स्टार्टअप्स हैं जो कि अभी सीड राउंड भी नहीं हुआ है, प्री सीड राउंड जिसे कहेंगे उस राउंड में है, उनको मेजर चैलेंजेस ज्यादा रहते हैं जो कि टेक्नोलॉजी वाइज इशू हैं। जो बड़े स्टार्टअप्स हैं वो मेंटरशिप दे रहे हैं कुछ कुछ, तो उससे थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिल पा रहा है, तो वहां तो थोड़ा चीजें स्मूथ हैं हल्की फुल्की। लेकिन जो उससे नीचे है प्री सीड वाले जो हैं, वहां पूरा डिजास्टर हो रखा है, तो उसको थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो फिर जो बड़े स्टार्टअप्स हैं जो कि गूगल से या माइक्रोसॉफ्ट फंडिंग मिल रही है जिन्हें, उनके पास भी बजट कंस्ट्रेंट हैं अभी भी, लेकिन वो अभी जो एक्सटर्नल सीटीओ को वो नहीं कर रहे हैं, वो अभी अपने आप ही सीटीओ रिंगा रिंगा रोजेस खेल के एक सीटीओ बना हुआ है, एक सीईओ बना हुआ है, तो वो उससे काम चला रहे हैं। क्योंकि सीटीओ और सीईओ और सीएमओ जो टर्म्स हैं ये काफी फैसिनेटिंग है। यूजुअली आजकल के स्टार्टअप सारे लोग अपने ही फ्रेंड सर्कल को सब सीएक्सओ रोल्स दे देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, rather than focusing on that actual thing. एक्चुअल प्रॉब्लम जो स्टार्टअप के साथ है ना, जो वो है एग्जैक्टली प्लानिंग की, जो मुझे फेस हो रही है। जो 2 या 3 बार ऐप को बिल्ड करके वो तुड़वा चुके हैं, दोबारा बनवा चुके हैं, उनके साथ असली प्रॉब्लम ये है कि वो उनके पास आज भी, अगर जो भी डिस्कशन के लिए मेरे पास आते हैं या जो भी कंसल्टेंसी ले रहे हैं, तो वो उनसे पूछता हूँ कि भाई आप, उसने कहा कि मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए हैं, तीसरी बार मैंने ये ऐप तुड़वा के बनवाई है। जो इधर उधर छोटी आईटी कंपनी से बनवा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो एक्चुअल स्टार्टअप्स हैं या जो एक बिजनेस कर रहा है वो स्टार्टअप बनाना चाह रहा है, स्टार्टअप ये जरूरी नहीं होता कि प्रॉपर वे में फंडेड स्टार्टअप ही हो। उसने कहा कि मैं एक सर्विसेज, मैं अर्बन क्लैब टाइप की सर्विसेज बनाना चाह रहा हूँ। एक कोई क्लाइंट है, वो कहता है कि मैं अर्बन क्लैब टाइप की सर्विस बनाना चाह रहा हूँ और मैं अभी स्मॉल स्केल में काम करूंगा। उसने शुरू किया 3 साल पहले काम, एक जगह ऐप बनवाई, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, ऐप नहीं मिली, फिर फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर 2-4 महीने वेट करने के बाद उसने कंपनी चेंज की, उसमें पैसे 2-3 लाख रुपए लग गए, फिर दूसरी कंपनी चेंज की, किसी और कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, उससे बनवाया, वहां पे भी उसको चीजें वो नहीं मिली। वो ठीक है, एक पीओसी काइंड ऑफ चीज उसके हाथ में मिल गई इस बार, अब वो भी नहीं चल पाई, वो डिले होते, वो भी मिली, वो भी 6-8 महीने के बाद। अब फिर वो मेरे से बात कर रहा है कि भाई मैंने 8 लाख रुपए लगा दिए हैं अभी। मैं कहा ठीक है, चलो लिस्ट दिखाओ आपके पास क्या फीचर होनी चाहिए। कहते लिस्ट तो नहीं है अभी, कोई बैकलॉग लिस्ट नहीं है, फीचर लिस्ट नहीं है। तो वो स्ट्रगल करता रहेगा क्योंकि जो डिवीजन है वो नहीं हो पा रही है। जब वो आपको पता है कि हमें बनाना क्या है, यूजर सेंट्रिक है, यूजर की जर्नी क्या होगी, यूजर को क्या फीचर हम देने वाले हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, वो आपकी फिक्स नहीं है, और आपने 7-8 लाख रुपए लगा दी हैं, तब ये सिचुएशन है, तो उससे ज्यादा पैथेटिक कंडीशन कुछ नहीं हो सकती फिर।
तो यहाँ पे इश्यूज हैं, जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं उनके पास एक फीचर लिस्ट पूरी होनी चाहिए हमेशा, वो उसको खुद बनाएं, चाहे वो आईटी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। एक्सेल हर किसी को आता है, कोई जीरा में कोई बैकलॉग लिस्ट नहीं बनानी है आपको, कोई फैंसी टूल कभी आप किसी के लिए भी मतलब वो काम नहीं करते, फैंसी टूल इज फैंसी टूल। तो मेन काम आपका हो जाता है एक्सेल में ही, या गूगल शीट जिसे कहते हैं, वो आप अपने फ्रेंड के सर्कल में शेयर कर लो, जिसके साथ भी आप कोलैबोरेट करके आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, वहां पे आप बना सकते हो। एक गूगल डॉक में फीचर लिखो, फिर उसका डिवीजन करो, फ्रंट एंड बैक एंड क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तब आप किसी भी कंपनी, किसी भी डेवलपर, किसी भी इंटर्न को भी आप हायर करते हो तो आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे 3 बार तुड़वाओ या 6 बार तुड़वाओ ऐप को, रीबिल्ड रीबिल्ड होता रहेगा, और इससे मैंने काफी बिजनेसेस लॉस, और टाइम तो लॉस हो ही रहा है और बिजनेस भी लॉस हो रहा है, प्लस रेवेन्यू जो उन्होंने लगाया है खुद की हार्ड एंड मनी, वो बहुत ज्यादा लॉस हो रही है। वहां सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि अब जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आप अपने कुछ लाख 2 लाख रुपए आपने लगाए, सस्ती में चीजें कुछ नहीं बन रही हैं, और वो फिर फेल होता है, और आपका दो चीज का लॉस होता है। सबसे पहले जो आपका एक रेवेन्यू था वो लग गया, प्लस जो टाइम लॉस हुआ 6 महीने, आपका प्रोजेक्ट की प्लानिंग थी 2 महीने की, वो 8 महीने में भी नहीं मिला। तो वो इसी प्लानिंग की वजह से फेल हो रहा है, क्योंकि आप जो एज ए क्लाइंट, एज ए कस्टमर, जो आप कह रहे हो कि मैं स्टार्टअप चलाने वाला हूँ, किसी ने अपनी साइड इनकम बनाने के लिए कि भाई मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और मेरे को एक ऐप बना के चीजें शुरू करते हैं, जस्ट लाइक अमेजोन जैसे स्टार्ट हुई थी कि भाई पार्ट टाइम जाके एक वेबसाइट बना के अपनी चीजें बनानी है, तो ये हर कोई ट्राई करता है, पर वो फेल कहाँ होता है, वो क्यों अमेजोन नहीं बन रहा है? क्योंकि वो प्लान पूरी चीजें नहीं कर रहा है, वो प्लान नहीं कर रहा है, और अगर मतलब 3 बार वो ऐप तोड़वाने के बाद भी उसके पास एक लिस्ट नहीं है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तब सबसे बड़ा फॉल्ट उसी का ही है। या या कृषि। हाँ, तो यूजुअली जब प्रोडक्ट बनता है ना, तो उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है, जब भी एक SaaS प्रोडक्ट होता है, तो देयर आर 2 मॉडल्स दैट अ स्टार्टअप टेक्स। इधर अ फ्रीमियम मॉडल, जहाँ पे हम थोड़ा पार्ट फ्री में देते हैं, एंड देन अ प्रीमियम मॉडल टू परचेज, या फिर हम उन्हें मीट पे बुलाते हैं एंड देन एक्सप्लेन अ प्रोडक्ट एंड देन पिच फॉर अ मॉडल टू परचेज। तो यूजुअली आजकल कौन सा मॉडल प्रेफर करते हैं स्टार्टअप्स? ज्यादातर वो पेड प्रोडक्ट, पेड में सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं, कि क्लाइंट चाहता है कि मेरे, या स्टार्टअप चाहते हैं कि मेरे को आज ही पैसे मिल जाए, मेरे 10 क्लाइंट आए तो 10 के 10 मेरे को पैसे देके जाए। तो वो पॉसिबल है नहीं। मैं जो हम हर किसी को सजेस्ट ये करता हूँ, पर वो मानते नहीं है, और फिर वो चलती नहीं है चीजें उनकी। प्रीमियम मॉडल सबसे बेस्ट है, और प्रीमियम मॉडल आप भी यूज कर रहे हो, जस्ट लाइक ये मीट यूज कर रहे हैं हम, या फिर फिग्मा है, आपने कैनवा आपने बहुत यूज किया होगा, और वो आप जानते क्यों हो? बिकॉज कि वो प्रीमियम मॉडल है। आप उस टूल को सीखने के लिए, उसके हाथ में जाने के लिए आपके पास प्रीमियम मॉडल नहीं बनाओगे। फ्री मॉडल जब तक नहीं दोगे, वो यूज नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा तो आपके प्रोडक्ट को जानेगा नहीं, तो जानेगा नहीं तो वो सोचेगा नहीं कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। आते के साथ ही ऐप लॉन्च हो, ऐप इंस्टॉल करने के बाद इंस्टेंटली कोई, या ऐप इंस्टॉल करने के लिए भी कोई पैसे नहीं देगा। ऐप सबसे ज्यादा कॉस्टली अफेयर्स होता है हर किसी मोबाइल यूजर के लिए। लेकिन कोई भी यूजर, या मुझे भी कोई कहे कि मैं ठीक ठाक इनकम है, अगर कोई कहे कि मेरे को ये चीज 500 रुपए में है, तो मैं थोड़ा सोच समझ के लूंगा। इमीडिएटली ऐप, एक तो पेड ऐप नहीं इंस्टॉल करूंगा, फ्री वाली भी मैं नहीं इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि भाई मेरा स्पेस भी कॉस्टली है मोबाइल का, तो मैं क्यों इंस्टॉल करूं? जब जब जिस चीज की मेरे को एक्चुअल नीड आ जाए कि हाँ ये मेरे को सर्विस चाहिए ही चाहिए। अब फिग्मा की अगर मेरे को, सॉरी कैनवा की अगर मेरे को कभी जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसका पेड वर्जन भी लेता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें लेने में। लेकिन अगर मैंने फिग्मा यूज ही नहीं, कैनवा यूज ही नहीं किया, मेरे को आता ही नहीं है, और वो पहले दिन कहता है यूज करने से पहले 500 रुपए देने पड़ेंगे, तो मैं उसे ट्राई ही नहीं करूंगा।
कस्टमर चाहता है नहीं मेरी सर्विस लेने से। अब उन्होंने अभी जो एक मॉडल आया था उसमें कहा था कि जो बिजनेस प्रोवाइडर है सबसे पहले आके वो 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब उसी से उनका कस्टमर आना, वो जो बिजनेस पार्टनर का लॉगिन बंद हो गया। फिर कहते हैं कि भाई ठीक है वो तो अब वो बंद हो गया। वो कंपनी के पास गए कि भाई ये तो गलत हो गया, हमारे तो कोई भी लॉगिन नहीं आ रहा, बिजनेस पार्टनर ही नहीं आ रहे हमारी ऐप में। कहते हमने आपने ये क्यों लगाया एक्स्ट्रा। अब वो कहते हैं अब हटा तो सकते नहीं, हम ये कर सकते हैं कि आप 1 रुपया कर लो, 1 रुपया ले लो, ठीक है कोई भी दे देगा। पर आप प्लम्बर के पास जा रहे हो कि भाई मेरे को इस पे ऑनबोर्डिंग कर ले, तो वो 1 रुपया आते के साथ जैसे ही पेमेंट गेटवे आता है वो रुक जाता है, चलो ठीक है बाद में देखूंगा। तो वो 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला उसको वहां पे। वो 1 रुपया या 10 रुपए या 500 रुपए भी तब देगा जब उस चीज को देखेगा, समझेगा, फिर करेगा। और यहाँ पे इस ऐप में बड़ा डेडलॉक उन्होंने जनरेट किया कि उनका फिर से वो ऐप तुड़वा के वो बनवाएंगे। अब वो इस ये जो डिसीजंस होते हैं कि सबसे पहले ऑनबोर्डिंग कराओ, उसको यूज कराओ, फीचर्स टेस्ट कराओ, वो यूज टू हो जाएगा, फिर उसको वो पैसे देने के लिए रेडी है हर कोई। ये आप अपनी तरफ से देख लो कि आप किस चीज के लिए पैसे दोगे। खुद वो कस्टमर कहता है कि मेरे को सारी चीजें फ्री में चाहिए, लेकिन उसके पास जो कस्टमर आ रहे हैं, उसके जो कस्टमर आ रहे हैं, वो कहता है कि नहीं मेरे को तो आते ही पैसे देने चाहिए उसे। वहां वो मॉडल कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता आज के टाइम में, जबकि इतनी सारी फ्री एप्स हैं। तो उन्होंने दोनों मॉडल रख लिए थे कि भाई जो अगर आप अर्बन क्लैब की बात करो, अर्बन क्लैब से आप कोई सर्विस लोगे तो आप रिक्वेस्ट डालने के लिए वो आपसे 5 रुपए भी नहीं लेता वो। लेकिन वो कहता नहीं मेरे यहाँ तो देने पड़ेंगे। वो कहता यार तुम 1 रुपया भी कर लोगे तो भी कस्टमर नहीं आएगा। उसको अपनी रिक्वेस्ट डालनी है कि भाई मुझे ये सर्विस चाहिए, मुझे प्लम्बर चाहिए, मुझे एसी सर्विस चाहिए, तो अपनी रिक्वेस्ट डाल रहा है। अब बिजनेस मॉडल में बाद में आप उनसे कट ले लो, जो मर्जी लो, आपके पास सर्विस प्रोवाइडर नहीं होंगे तो सर्विस कौन करेगा। सर्विस प्रोवाइडर के लिए ऑनबोर्डिंग होनी है, ऑनबोर्डिंग के लिए आपने उनसे 1 रुपया भी मांग रहे हो तो वो ऑनबोर्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो बाकी आप अभी से जब उसे लगेगा कि मुझे मैं 5-10 मैंने उसने बिजनेस लिया, जो बिजनेस प्रोवाइडर है वो आपके यहाँ से लीड उठा के 10 लोगों के यहाँ सर्विस करके आता है और 500 रुपए की ऑन एवरेज सर्विस करके आया, 10 लीड उसने मैच्योर की, उसको यूज टू हो गया, उसे पता है मेरे को यहाँ से बिजनेस मिल रहा है, फिर वो आपसे 10 रुपए की पर लीड खरीदने के लिए रेडी है। लेकिन पहले दिन वो नहीं करने वाला 1 रुपया। ये जनरल ट्रेंड है। अब वो टेस्ट नहीं कराना चाहते कुछ लोग, तो वहां पे वो फेल हो रहे हैं। तो अगर हम ग्लोबल का चेक करेंगे, पहले एक प्रीमियम सॉफ्टवेयर हुआ करते थे, उनके लिए हमने यूज किए हैं और उनके लिए भी फ्रीमियम मॉडल दूसरे वे में बन गया है। जब तक फ्रीमियम मॉडल नहीं होगा हम कभी किसी प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं। लाइक हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज किया जबकि वो जिस टाइम पे वो पायरेटेड बन के आता था, क्योंकि 298 है, 95 भी हमने यूज किया है, 2000 मिलेनियम, सबके पायरेटेड वर्जन यूज किए। सो दैट पायरेटेड वर्जन जो उस टाइम पे हुआ करते थे वो फ्रीमियम मॉडल का पार्ट है। वो उस टाइम पे फ्रीमियम होता था क्योंकि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर कोई भी पायरेटेड नहीं बना सकता, मतलब पायरेट नहीं कर सकता किसी भी बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट को। वो खुद ही अपना पायरेटेड वर्जन लॉन्च करते थे जिससे कि यूज कर पाए। आपको लाइनेक्स यूज नहीं करना आता, आपको विंडोज यूज करना आता है, तो आप कंपनी में जाके कहोगे मेरे को तो विंडोज आता है, तो जो कंपनी है उसे उसका लाइसेंस खरीदना पड़ता था। ये फ्रीमियम मॉडल इस वे में काम करता था उस टाइम पे। आज की डेट में हम कैनवा यूज कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि फ्री में मिल गया, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं फ्री में मिल गया, लेकिन जब आप एक लिमिट से ज्यादा यूज करने लगोगे तब आप पैसे दोगे, क्योंकि आपने यूज कर लिया, फीचर समझ ली, काम करना आ गया, तो आप पैसे दोगे। उससे पहले आप पैसे नहीं देने वाले। आज ही अगर कोई कहे कि चैट जीपीटी, अगर किसी ने पहली बार चैट जीपीटी को यूज करने के लिए $20 मांग ले, तो वो कोई भी नहीं उसको यूज करेगा। अब इंटरनेशनली अडेप्टेबिलिटी फ्रीमियम मॉडल की वजह से आई। प्रीमियम मॉडल के अलावा और कोई तरीका नहीं है।
जो भी ये कर रहा है, जिनकी वो पता नहीं क्यों सोच रहे हैं, आज की डेट में भी ये सोच रहे हैं, चाहे वो आज कोई भी ऐप चला रहे हो उसमें उन्हें फ्री में चाहिए हर चीज, लेकिन जैसे उनके पास कस्टमर आए वो पैसे दे के आए, ये पॉसिबल नहीं है। Right. Mahendra, we have some rapid fire questions where you just need to tell one word or एक brief में ऐसे ही word में, तो हम आपको एक के बाद एक questions we will ask you and just rapid fire type sort of thing. Okay. So ready everyone? Yeah, sure. Yeah. So one word to describe your leadership style. Empowering, mainly empower the startups to do their business. Your favorite tech tool or software? ChatGPT. इसके बिना अब लाइफ पॉसिबल नहीं है। कुछ पॉसिबल नहीं अभी, only AI is there. मतलब ये हमारा टेक्निकल फ्रेंड है जिससे हम डेली, मतलब अब मैंने गूगल सर्च बंद कर दिया है, अब सिर्फ चैट जीपीटी से पूछते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी प्लानिंग चाहिए, सब चीज चैट जीपीटी अच्छे से बता देता है, जो कि अगर मैं सर्च करूं पुराने तरीके से तो मैं एक हफ्ते तक उस चीज का सॉल्यूशन नहीं बना पाऊंगा, जो कि मुझे एक प्रॉम्प्ट लिखने से ही आ जाता है। तो वो मस्ट है हर किसी के लिए। मैं तो कहूंगा कि अगर वो यूज कर रहा है तो आदत डालो और अपने आप पेड में कन्वर्ट हो जाओगे, फिर मैं भी, मेरी तरह आप भी पैसे दोगे उसे। A tech trend you think which is अभी overrated थोड़ा? ओवररेटेड तो अभी मेटावर्स ही चल रहा है, जो कि मतलब अभी पता नहीं है किसी को क्या है क्या नहीं है, अभी कोई प्रैक्टिकल यूज केस आया नहीं है उसका, तो मेटावर्स को अभी टाइम लगेगा और हाइप बनी हुई है ज्यादा, तो जब आएगा, जब पता चलेगा कि क्या है वो। अभी अभी नॉर्मल रूटीन लाइफ में अभी तक, और मेरा लाइफ का फोकस ही यही है, जो भी टेक्नोलॉजी हो वो यूजर की लाइफ को टच करे, उसकी चीजों को सॉल्व करे, तब काम करने में मजा आता है। देखते हैं अभी कैसा आएगा और कैसे सॉल्व करेगा लोगों की लाइफ को। स्टार्टअप और कॉर्पोरेट, आप कहाँ पे काम करना प्रेफर करते हो? स्टार्टअप ज्यादा बेटर है, क्योंकि कॉर्पोरेट में ना आपको बहुत बड़े पार्ट का 0.1% काम मिलता है, तो उसमें पूरा होराइजन समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट क्या है और क्या हम सॉल्व कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। स्टार्टअप में ये है कि उनके पास पोटेंशियल है, वो जल्दी कन्वर्ट करते हैं चीजों को, और बड़े प्रोजेक्ट हमारे पास पूरा डायरेक्टली करने के लिए आता है। तो एज ए टेक्निकली मैं पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा हूँ शुरू से ही, तो मुझे उसमें उसे काम करने में ज्यादा मजा आता है। मैंने 1-1.5 साल ही मैंने जावा में काम किया, वहां मुझे छोटा सा पार्ट मिला, वो मेरे को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा कि यार पता नहीं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं छोटा सा कर रहा हूँ, कुछ मेरी नॉलेज ना ग्रो नहीं कर रही है, क्योंकि मैं एक लिमिटेड पोर्शन में काम कर रहा हूँ। दैट्स द मेन थिंग आई एम कंसीडरिंग। The most challenging project जो आपने काम किया हो? चैलेंजिंग तो कोई नहीं था मेरे लिए, मेरे सब रूटीन प्रोजेक्ट, मैं कहता हूँ कि कहीं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, ऐसी वैसी टेक्नोलॉजी सिंपल होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, आप 10 मंजिल की बिल्डिंग देखो या 100 की देखो, सेम चीज है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जोड़ते रहो, बस थोड़ी सी प्लानिंग आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है बड़ी बिल्डिंग के लिए। वैसे इसमें किया है मेजर, जो लास्ट हमारा जो ये वीडियो स्ट्रीमिंग का प्रोजेक्ट था, इसमें सारी चीजें स्मूथ हो गई थी। एक में मेरे को इशू आया था, वो था कि जब लाइव स्ट्रीमिंग जो हम कर रहे थे, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग फीचर काफी बाद में ऐड हुई थी, वो बनने के बाद भी उसमें कुछ एक फ्लो आ गया था, और जिसको सॉल्व करने में लगभग कुछ मेरे को 1 महीना लग गया था, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट हो गया था। बाकी तो सारे प्रोजेक्ट लगभग अंडर कंट्रोल रहे हैं, किसी में कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि वीडियो स्ट्रीमिंग भी, इवन जो भी हम वीडियो ऑन डिमांड जिसे कहते हैं, वो पार्ट भी काफी स्मूथली हो गया था, जो कि आज तक लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग बना हुआ है, वो उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी भी। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट ऑफ बीइंग अ वर्चुअल सीटीओ आपके लिए क्या था?
वर्चुअल सीटीओ में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट मेरे लिए टेक्नोलॉजी कभी चैलेंजिंग नहीं रही है, चैलेंजिंग सिर्फ पीपल रहे हैं। और वो जो लेमैन कुछ भी कर देते हैं उल्टा पुल्टा, तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हमने बिल्ड बनाई एंड्रॉयड की, वो अपने आईफोन में चला रहे हैं, तो ऐसी चीजें ज्यादा होती थी, फनी कह सकते हैं इन्हें। और फिर उनको समझाना, उनको कोई कोई भी उनको पिन मार के कह देता है कि भाई ये गिट में ना ज्यादा ब्रांच होती है तो प्रोजेक्ट हैक हो जाता है। तो ऐसी चीजों से डील करना अजीब सा ही चैलेंज है मेरे लिए। बाकी टेक्नोलॉजी वाइज तो कोई ऐसा कोई चैलेंजिंग पार्ट नहीं रहा मेरे लिए। One thing that startups often misunderstand about scaling in tech. मेनली तो वो प्लानिंग नहीं करते, जो उनकी फेज प्लानिंग या मॉड्यूल प्लानिंग होनी चाहिए वहां वो मिस करते हैं। इसी वजह से मैंने देखा है कि कईयों ने 3-3 लाख रुपए पर मंथ वो स्पेंड कर रहे हैं, और फिर भी उनका प्रोजेक्ट जो है 3 महीने से डिले चल रहा है। वो रीजन ये उसका यही है कि उनकी प्लानिंग नहीं है, उनकी कोई बैकलॉग लिस्ट नहीं है, और उनका जो आर्किटेक्चर है वहां फॉल्ट रहता है। अब वो क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम जो आर्किटेक्चर इनकी सबकी है कि एक फ्रंट एंड का है पकड़ा, एक बैक एंड वाला लिया, और वही वो अलग अलग बैठे काम कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को 3-3 घंटे मिले हैं, क्योंकि हर कोई जॉब कर रहा है, वो अपना टाइम निकाल के एक्स्ट्रा कर रहा है। तो वहां जो टीम कोलेबोरेशन नहीं हो रहा है, प्लस उनके बीच में मेंटरिंग नहीं हो रही है, वहां इशू आता है। तो प्रोजेक्ट डिले ही जाता रहता है, और उसके कोई चांस नहीं बन रहे हैं कि वो रिकवर कर पाएंगे इसमें में। तो कईयों को मैंने देखा है कि आई आईआईटी का एक उन्होंने सीटीओ हायर किया था। एक पहले मेरे को एक ऑफर आया था जब मैं काम कर रहा था, कि फिर मैंने उसको मतलब ज्वाइन नहीं कर पाया था मैं, पर एक गुड बुक्स में डिस्कशन चलता रहा। फिर 1 साल बाद बात हुई तो प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन पता चला कि उनका सीटीओ खैर किसी वजह से छोड़ गया था, तो उन्होंने दोबारा मेरे को अप्रोच किया था 1 साल बाद। तो लॉन्च कब हुई ऐप उनकी, मतलब 1.5 साल बाद उन्होंने जब काम स्टार्ट किया, उसके 1.5 साल बाद तो एंड्रॉयड पे गई उनकी ऐप। कहते हमें 3 महीने तो लग गए एंड्रॉयड का अप्रूवल लेने में। क्यों? और जो हमने ऐप जो लॉन्च की थी वो हमने जैसे 30 तारीख अप्रैल में डाली थी, हमने 30 तारीख को डाली थी, 1 तारीख को हमें अप्रूवल आ गया। अब असली पार्ट क्या था उसका, मेन क्यों हो गया इतना जल्दी, क्योंकि हमने एक लिस्ट बनाई कि क्या एंड्रॉयड को चाहिए, कि जो हमारी ऐप को में होना चाहिए जो अप्रूवल के लिए जाता है। अब वो लिस्ट अगर हमने पहले बना ली, उस पर हमने काम कर लिया, तो हमारी ऐप रिजेक्ट ही नहीं होगी। वो फर्स्ट मतलब आई थिंक 10-15 घंटे में रात को डाली, सुबह अगले दिन तक अप्रूवल आ गया था, तो डे चेंज हुआ था खैर, तो जल्दी हो गई क्योंकि हमने प्लान किया था। और जो भी उनको चाहिए एंड्रॉयड को, जो भी उनके नॉर्म्स हैं उनकी हमने लिस्ट बनाई, उनके हिसाब से चीजें डाली, और अप्रूवल आ गया। वो लिस्ट क्या होता है, उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, ऐप उनको लगा कि हमारे हाथ में सही चल रही है, अब हम इसको पोस्ट कर देते हैं। वो पोस्ट की तो उनके सारे जो एक बार में उनके रिजेक्शन आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, ऐसे कर करके उसको ठीक किया, उसको ठीक किया, उसको ठीक किया। पर उन्होंने लिस्ट नहीं बनाई कि भैया इनको क्या चाहिए, सारी फीचर्स की लिस्ट एक बार बना लो कि उनके क्या नॉर्म्स हैं, उनके क्या कंप्लायंस हैं, उनको पूरा करो और फिर आप ऐप को डालो। ये भी नहीं हुआ, उसके लिए उन्होंने कम से कम 10 बिल्ड उन्होंने वहां पे पुश की, तब जाके वो अप्रूव हुई। तो ये बड़े स्टार्टअप की बात है जो फंडेड था, जिसमें कि 1.5 करोड़ की फंडिंग मिली हुई थी उसको, उसके साथ भी ये इश्यूज थे। तो यहाँ पे सारे जो स्टार्टअप्स को मैं यही कहूंगा कि हर चीज की प्लानिंग कर लो, जिसमें भी जा रहे हो, प्ले एप्स एंड्रॉयड में जा रहे हो, आईओएस में जा रहे हो, जहां पे भी आप जाते हो, सबके कंप्लायंस लिस्ट अवेलेबल है। ये नहीं कि हमें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, जाओ साइट पे चेक करो, वो सारा कुछ बताएंगे, आप रजिस्ट्रेशन कर लो, उस प्रोसेस को पहले फॉलो कर लो। कभी कभी क्या होता है ना, कई क्लाइंट ने का ना प्रोजेक्ट उन्होंने क्या कहते हैं अकाउंट ही बैन किया हुआ है प्ले स्टोर ने, कि उन्होंने अटेम्प्ट इतने ज्यादा कर दिए कि वो ऐप बैन हो गई है, वो पोस्ट ही नहीं कर सकते दोबारा।
अब वो नया अकाउंट बनाएंगे तब वो नए नाम से उस ऐप को लॉन्च करेंगे, क्योंकि अननोइंगली बस जस्ट उन्होंने कहा, कभी कभी उसमें आइकन मिसिंग है, उसकी टैगलाइन मिसिंग है, ऐप का नाम नहीं है, एसेसिबिलिटी कंप्लायंस रहते हैं, उन सबको वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। बस ऐप बनी गई, हाथ में चलने लगी तो भाई भेज दो। फिर उन्होंने कुछ इशू आया, उसमें कोई क्लियर वायलेशन लिखी नहीं होती, थोड़ा बहुत जो ठीक करके लगा कि हाँ ठीक हो गई होगी, पुश कर दिया, फिर दोबारा से रिजेक्शन आ गई। तो ये कर करके चीजें खराब मत करो, हर चीज को प्लान कर लो। तो अपनी फीचर्स को भी प्लान करो, कंप्लायंस को भी प्लान करो, यूआई को भी प्लान करो, फिर आपकी चीजें स्मूथ रहेंगी। लाइक स्टार्टअप को परफेक्ट प्लानिंग के साथ फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सर, आप आए और अपना इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर किया हम लोग के साथ। डेफिनेटली हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा। थैंक यू सो मच। Thank you, audience, for joining us. Please like, share, and subscribe. We'll come to an end of the podcast. Let's meet on the next podcast.